Good morning, dear students. Now we are going to see about the colligative properties. Till now we have studied about the concentration expressed, different types of concentration of the solution. That is molarity, normality, mole concept देखा starting में, molality देखी, molarity, normality और पार्ट्स पर मिलियन देखा, मोल फ्रैक्शन देखा. तो अब ये मोल फ्रैक्शन जो है इस अमंग दीज मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा हमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में थोड़ा ज़्यादा काम में आने वाला है. तो बिफोर स्टार्टिंग यू रिमेंबर द important formula for mole fraction. What is that? That is number of moles is equal to given mass by the molecular mass or molecular weight. Okay, ये बहुत important है. Now let us proceed for the colligative properties. First of all, we will start with solute and solvent. A solution is a homogeneous mixture composed of two or more substances. In such a mixture, ना solution क्या है? Mixture of homogeneous substances. उसमें solute भी रहता है और solvent भी रहता है. तो solute जो है is dissolved in another substance known as solvent. And common example is such as salt or sugar. ठीक है? Dissolved in water or liquid. Gases may dissolve in liquid, for example carbon dioxide or oxygen in water. जैसे आप लोग लिक्विड में भी मैंने एग्जांपल दिया था, कोका कोला है या मिरिंडा वगैरह है, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ओनली. ओके, जहाँ पे गैस एंड लिक्विड बोथ आर द मिक्सचर्स और दिस इज आल्सो ए सॉल्यूशन. नाउ ट्रू सॉल्यूशन बोलने से क्या होता है ना, एग्जैक्ट ट्रू सॉल्यूशन, कि तीन टाइप के सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे. उसमें तो हम लोग ने टाइप्स देखे थे कि सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड क्या है, ठीक है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है. ये सब जो है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, पहले ही बताया गया. व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट इज नथिंग बट अ स्मॉल क्वांटिटी एडेड इन द solvent. Solvent means what? The solid or a substance is getting dissolved in larger amount. It get dissolved means उसका volume कितना रहता है solvent का, is a thing which is having larger volume to get the solute dissolved. That is nothing but solvent. And solution तो मालूम ही है. तो true solution है क्या? Homogeneous mixture of two or more substances and the composition which is not fixed, may be varying. ठीक है. Solvent यानी क्या होता है? Component of solution which constitutes larger part of the solution. पहले ही बताया, which constitute larger part of the part of the solution. Other is solute, others component which is a smaller part. ठीक है. Solution are a mixture of two or more components depending upon the size of the components. अभी जो components है solution के, वो कैसे प्रकार के हैं हम लोग देखेंगे. One is coarse, another one is colloidal dispersion and the true solution. So in this way solution का ये diagram है जहाँ पे solute is getting dissolved in this solvent. अभी solution में हम लोग देखेंगे कि coarse, colloidal and coarse component क्या होता है. It is a size of component relatively big. Coarse बोलने से I mean they are like big molecules, larger molecules are mixed. For example salt and sugar. Colloidal बोलने से जैसे कि सपोज लाइक यू नो इफ वी आर ऐसा टाइप का कंपोनेंट जैसे कि ऑयल में वाटर या वाटर में ऑयल. सपोज वी ऐड ऑयल इन द वाटर सो उसके ड्रॉपलेट, दैट इज ए कोलाइडल और सस्पेंशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. ट्रू सॉल्यूशन बोलने से क्या होता है? होमोजीनियस. ठीक है, होमोजीनियस. अभी कोलाइडल का जो साइज पार्टिकल डिस्पर्स होता है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁴. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, बट दिस इज अ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है, ये भी हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है, बट ट्रू सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ होमोजीनियस एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल मेथड्स. यहाँ मैकेनिकल साल्ट शुगर है, या तो फिर आप देखेंगे आयरन और सैंड है. देर आर सो मेनी कोर्स components which can be separated mechanically, but homogeneous या true solution cannot be separated mechanically. Okay, so this is the components.
Again, that is homogeneous implies uniformity appearance to the mixture. Heterogeneous means तो मालूम ही है, two different phases which is easily visible. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मैंने पहले ही कहा था कि सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड का ही सॉल्यूशन बनता है. देयर आर सो मेनी सच मिक्सचर्स. गैसेस का मिक्सचर है, लिक्विड गैस है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख के भी है, सॉलिड गैस है जैसे हाइड्रोजन इन प्लैटिनियम. लिक्विड लिक्विड अल्कोहल एंड वाटर एग्जाम्पल. लिक्विड सॉलिड है, लिक्विड इन सी वाटर. सॉलिड 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 मेटल अलॉयज. यहाँ में भी काफ़ी सच एग्जाम्पल्स आर देयर ऑफ द solution. अभी alloy जो है that was firstly that is solid solid. metal का भी mixture है, solid का भी है. this is example यहाँ पे दिया है solid का. brass bronze. then solid liquid का है iodine in carbon tetrachloride. sugar in water. There are so many such. liquid in solid भी type of solution है. that is mercury with metal. liquid तो है ही है. liquid in gas है, gas in solid है, that is hydrogen in palladium. gas in liquid है, gas in air mixture of non-reacting. so there are so many type of solutions. okay. The concentrated solution is defined as amount of solute dissolved in a specific amount. अब अगर हमको बोला, हमने पढ़ा है ना concentration of the solution is in different types of methods है. जैसे कि नॉर्मा मोल कंसेप्ट पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी पढ़ी, फिर मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है. लेकिन इस सब के लिए हमको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सो व्हाट यू कैन से व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन जिसकी हमको डेफिनाइट अमाउंट मालूम है टू गेट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बोलेंगे. हम बोलेंगे ना कि ये 1 मोलार का है, ये 1 नॉर्मल का है. क्यों बोलते हैं हम लोग 0.5 नॉर्मल का है, 0.4 है, 0.2 है, 0.02? क्यों बोल रहे हैं हम लोग? बिकॉज हमको मालूम है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 1 ग्राम ऑफ शुगर, टेबल स्पून ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ beaker. so we know that is the concentration of solution हम बनाने वाले हैं. so we know the quantity की कितने हम उसमें ऐड कर रहे हैं, how much we are adding it. so in this way we understood that how the concentration of solution यानी उसकी amount of solute हमको मालूम होता है. ठीक है. now we will see the solubility. molar solubility of substance is its molar concentration in a saturated solution. Molar solubility of a substance depends on the molar concentration. A saturated solution is one in which dissolved and undissolved solutes are in dynamic equilibrium. दोनों भी dissolved और undissolved जो है वो दोनों भी equilibrium, dynamic equilibrium with each other. And a saturated solution represent limit of solute's ability. ठीक है. Let us, for example, if measure concentration of glucose in saturated solution at 20, we find that 6 mole per liter. So the molar solubility of glucose in water is at 20 degree 6 mole per liter. तो 6 मोल जो है वो 20 डिग्री पे उसका मोलैरिटी है. उसका जो मोल है ग्लूकोज का वो इतनी कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है. ठीक है. अब वो रहा एग्जाम्पल बताया. द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विद सोल्यूट पार्टिकल टू फॉर्म एग्रीगेट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन. इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विद सोल्यूट पार्टिकल टू फॉर्म एग्रीगेट्स यानी क्या? होमोजेनिटी. ठीक है. दैट इज सॉल्वेशन. एंड व्हेन द सॉलिड इन वाटर द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन इज हाइड्रेशन और एक्वेशन. ठीक है. when the solvent in water is water and the process of solvation is called as hydration or aquation. The extent to which solute dissolve depends upon the nature of the solvent. ना polar solid dissolved in polar solvent, non-polar solid dissolved in non-polar solvent. For example है जो नमक है वो पानी में मिलता है, NaCl is dissolved in water. Okay, that is polar solvent. And non-polar solvent iodine in CCl4. ठीक है. पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट हाइड्रोजन bonds.
ओके, नाउ फैक्टर्स। अभी ये सब सॉल्यूशन जो बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन जो चैप्टर है या एक्सप्रेशन है, इसमें पहले ही बताया था कि जो दो है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी हम वॉल्यूम बेस्ड रहता है इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैलिटी है इंडिपेंडेंट क्योंकि उसको हम ग्राम किलोग्राम में यूज़ करते हैं। सो कौन से फैक्टर्स हैं उसका देखेंगे। नेचर ऑफ द सॉल्यूट में बी क्रिस्टलाइन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्वेशन यानी कितनी एबिलिटी टू डिजॉल्व अ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। नाउ लेट अस स्विच डियर स्टूडेंट्स टू द मेन टॉपिक दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव मीन्स क्या है, टुगेदर, कलेक्शन ऑफ टुगेदरनेस। इट इज अ कॉलिगेटिव इज अ ग्रीक वर्ड जहाँ पे हम बोलेंगे कलेक्टिव प्रॉपर्टी is such a property which do not depend on the nature of the dissolved species. वो कौन है ये नहीं देखना है, वो कितनी अमाउंट में है स्टूडेंट्स वो देखना है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हमको पता करनी है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि उसका नेचर नहीं हमें उसे पता करना है, हमें वो कौन है ये नहीं पता करना है, वो कितनी अमाउंट में है वो पता करना है। सो हियर वी हैव ऑलरेडी रिटर्न लाइक दिस, that is we don't depend on the nature of the dissolved species but only depend upon the number of dissolved particles. अब the numerical values of the vapor pressure of जो है, जो कौन से फैक्टर्स है, वेपर प्रेशर, लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन एंड नॉट इन द आइडेंटिटी और नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर ये देखेंगे आप, ये बहुत बढ़िया सा एक स्लाइड है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बीकर में सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, दिस इज सोल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। सो ये पूरी स्टोरी है, बस ये इसी पे पूरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंडेंट है क्योंकि कलेक्टिव जो प्रॉपर्टीज है, कलेक्टिव टुगेदरनेस। अब कलेक्टिव टुगेदरनेस किसका सोल्यूट का है, लेकिन किसका नेचर नहीं, उसकी अमाउंट कितनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड, ठीक है। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी नहीं। हम वो नहीं देखने वाले क्या डाला, क्यों डाला और उसके कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हम उसमें देख रहे हैं कितने अमाउंट में डाला है। और जब हम कोई भी अमाउंट अगर सोल्यूट की पानी में, लिक्विड में या कोई दूसरे लिक्विड में डालते हैं तो उससे हमको फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट होते हैं। स्पेशली अभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्डली हम लोग ने प्योर वाटर से ही लिया है एंड उसी से हमको डिफाइन की गई है। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कैसे होता है वो देखना है। अगर कोई सोल्यूट पानी में या सॉल्वेंट में, ठीक है, कोई भी एक आधा सोल्यूट यानी कोई भी सॉलिड पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हम उस पानी में डाल रहे हैं, यानी सब्सटेंस क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सोल्यूट हुआ एंड जो सॉल्वेंट क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे वाटर हुआ। तो ये चीज़ में हम लोग क्या देखेंगे, बस यही दो चीज़ में हम लोग ये देखेंगे कि हम कोई चेंजेस देखते हैं, वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। ऐसे चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये हमने पाई गई है कि देयर इज अ डिफरेंस इन समथिंग। ये कैसा होता है, क्यों होता है, ये देखेंगे। लेकिन आज के अभी के लेक्चर में वी आर एंड ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके, वी आर गोइंग टू सी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. In fact, the actual number of particles present in the solution decides the value of the colligative properties. फिर से यहाँ पे सिंपल स्लाइड भी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप से कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव पहले ही बताया आपको, इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स कलेक्टेड टुगेदर and it only depend on the number and not the nature of the particle, ठीक है। तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
इट इज यूज टू डिटरमाइन, अब इसका क्या है, व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ, हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, what is the application of colligative properties, what is the application, क्या है, क्यों हम colligative properties पढ़ रहे हैं, what is the reason, why, the reason is that it is first it is used to determine the molar masses of non-electro solutes, electrolyte solutes, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलता है, मोलार मासेस पता चलते हैं, कितने मोल्स में हमने ऐड किया, कितने मोलर सॉल्यूशन है करके। द रिलेशन डिराइव्ड यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड गुड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बहुत काम में आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0.2 मोलार। तो ऐसे इसके 3 एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एंड ओनली वन एप्लीकेशन इज दैट इट यूज टू डिटरमाइन द मोलार मासेस एंड सेकंडली, अब मोलार मासेस मालूम होता है तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पता चलता है, एंड एज वी गो फॉर कॉन्सेंट्रेशन तो हम उसको डाइल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। डाइल्यूशन बोलने से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाती है उसको डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। So let us further proceed. First of all, we are going to see about the lowering of vapor pressure. So lowering of vapor pressure was firstly studied by Raoult's scientist Raoult's law. तो उसमें हम लोग देखेंगे lowering of vapor pressure क्या है, ठीक है। So colligative properties ये तो हो चुका है, हमको बताया solution क्या है, solubility क्या है। Now अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हमने लिया है वेपर प्रेशर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने बीकर लिया है, बीकर में हमने प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला है, या तो प्योर सॉल्वेंट डाला है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए पानी ही रखा है। अब पानी रखने के बाद आप अगर देखते हो तो क्या होता है कि अगर हम उसको अलाउ करते हैं इवेपरेशन के लिए तो वो तुरंत इवेपरेट हो जाएगा, 15-20 मिनट कुछ समय लगेगा इवेपरेशन के। वही अगर हमने उस सॉल्वेंट में या पानी में कोई ऐसा सोल्यूट डाले जो कि नॉन वोलेटाइल है, जो कि उड़ नहीं रहा है, ठीक है। वोलेटाइल बोलने से क्या होता है, जो कि भाप बन जाए। ओके, व्हाट इज वोलेटिलिटी, विच इज दैट इज द थिंग्स आर गेटिंग वेपराइज्ड और इवेपरेटेड। तो ऐसा सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूट हमको लेना नहीं, हम नॉन वोलेटाइल इसलिए स्पेसिफिकली बोलते हैं। चल के मान के चलिए जैसे साल्ट या हमने साल्ट लिया, शुगर लिया, अगर हम उसमें डालते हैं और हमने उसको ऐसी धूप में रख दिया फॉर इवेपरेशन, तो हम ये देखेंगे कंपैरिजन में जो प्योर वाटर है और जिसमें हमने 2 अगर बीकर्स लिए, उसमें एक में क्या है सिर्फ पानी है, दूसरे में पानी के साथ नमक है। तो आप अगर देखोगे द टाइम कंज्यूम्ड फॉर द इवेपरेशन ऑफ द solution that is salt plus water, na, it's a mixture of 2 components, homogeneous mixture, okay, it's a true solution, then what is happening, it will take much time as compared to the pure salt। बराबर है ना, अगर पानी दोनों बीकर में पानी है लेकिन एक में हमने नमक डाला है, वो हमारा बन गया सोल्यूशन बन गया बच्चों, और एक में हमारा सिर्फ पानी है, और हम अगर 1 घंटा भी उसको धूप में रखें तो हम ये पाते हैं कि जो कड़ी धूप में रखें तो हम देखेंगे कि जो सिर्फ पानी की जो लेवल है वो काफ़ी डिक्रीज होती है। लेकिन हम अगर उसमें नमक डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको इवेपरेशन को टाइम लगता है, उसको इवेपरेशन को टाइम लगता है। तो ये क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वेपर प्रेशर नामक चीज क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल फिर से हम ये 2 बीकर यहाँ पे लिए हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट है अलोन और यहाँ पे हमने दिया है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। अब हमको देखना है कि उसको हमने अगर दोनों चीज़ों को हमने वेपर प्रेशर का हम लोग डेफिनेशन देखें कि वेपर प्रेशर यानी क्या होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अगर हमने देखा कि ये जब हम लोग इसको लीड लगाते हैं, ये दोनों चीज़ को अगर हमने लीड लगाया, ठीक है, तो अगर हमने इसको एक्सपोज किया तो
वैपरेशन जो इवेपरेशन वो क्या होगा, इसमें स्लो होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसमें लीड लगाया तो फिर क्या होगा, सिमिलर द थिंग्स विल हैपनिंग दैट if because of solute solvent intermolecular attraction higher concentration of non-volatils make it harder for solute to escape to the vapor। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो ये सोल्यूट डाला है वो जो है उसको वेपर प्रेशर को, वेपर फेस को जल्दी निकलने नहीं देगा, भाप बनने की प्रक्रिया नहीं करने देगी। तो वेपर प्रेशर को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हेन द प्रेशर एक्सर्टेड, जो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द गैसियस स्टेट of that substance, of the gaseous is that substance where it is equilibrium with the liquid phase, solid और liquid phase, ठीक है। तो वेपर प्रेशर यानी क्या कि जो substance defined as the pressure exerted by the gaseous state of the substance when it is equilibrium with the solid और liquid phase, यानी जो हम जितना हमारा solid liquid वहाँ पे है उसके जो उसके भाप बनेंगी वो पूरी जाके कंडेंस होंगी, ठीक है। ये इसको कंडेंसेशन बोलेंगे, है ना। यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे ही वो वापस आएगी, तो दिस इज कंडेंशन। तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट गैसियस स्टेट विल बी इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड एंड लिक्विड प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं दोनों चीजों में, तो यहाँ पे जल्दी बनेगा, टाइम कंज्यूम्ड विल बी लेस बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट इज नॉट एडेड और यहाँ पे क्या है, सोल्यूट इज एडेड। सो ये दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा तो वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू, यहाँ पे जल्दी कंडेंस होते जाएंगे लीड के ऊपर अगर हम उसको ढक रहे हैं, और यहाँ पे कम होगा क्योंकि हमारे इसमें सोल्यूट ये हिंड्रेंस है, ठीक है। एंड एज सुन एज सोल्यूट इज गेटिंग एडेड इन द सॉल्वेंट देन द जो बीकर का जो है चीज, वो कंपोनेंट वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। So in this way we say that this is the vapor pressure, okay। ये भी एक है, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ कोई हिंडरेंस ही नहीं है, यहाँ पे सोलिड पार्टिकल्स है तो यहाँ पे weaker driving forces हैं, so pressure exerted will less as compared to the solvent। तो हम लोग अभी वही देखेंगे कि फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल दे सकते हैं कि सपोज हम लोगों ने 3 कंटेनर्स, इसी की जैसे 3 कंटेनर्स देखा है, उसमें हमने सपोज इसमें कुछ सिर्फ वाटर डाला है, इसमें कुछ ग्राम्स 1 मोलार CuSO4 डाला है, और एक लेंगे उसमें 2 मोलार CuSO4 डाला है। तो इसकी जो रेट है इन तीनों की, ओके, इसमें लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर है वो किस में ज़्यादा होगी, किस में ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किस में होगा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट वाले में ज़्यादा होगा, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 2 मोलार ऑफ CuSO4 में, अब हमने CuSO4 डाला है फॉर एग्जांपल, तो CuSO4 2 मोलार में ज़्यादा होगी। सो इन दिस वे देयर इज ए चेंजेस, and that is also a non-volatile solute। अभी राउल्ट्स लॉ में क्या है कि राउल्ट्स लॉ इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ, ये जो राउल्ट नाम का साइंटिस्ट है उसने डिस्कवर किया, तो इसमें वेपर प्रेशर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, P1 ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द X1 ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। जो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर जो है, जो बोला था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड और लिक्विड ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो ये क्यों होगा, क्योंकि जैसे जितना डाला है उतना ही तुम्हारे को प्रोपोर्शनलिटी मिलेगी, ठीक है। सो हियर इट इज लाइक X1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
how is mole fraction? That component of A is divided by component of that solution, and suppose there are two mixtures A and B, the component of one getting dissolved in component of that solution, or component of two is getting divided by component of that solution. अब जैसे वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय P01 and P1 the vapor pressure of the solution with the solute. So let us go for the colligative properties. The French chemist F. Rolle studies the effect of concentration of solution on the vapor pressure of the solvent. On the basis of experimental results he put forward a law, and this law can be stated as the partial pressure of any volatile component of the solution at any temperature is equal to the product of vapor pressure of the pure component and mole fraction of the that component in the solution. अभी Raoult's law क्या बोलता है कि how he stated the partial pressure of any volatile component कोई भी partial pressure का volatile of that solution at any temperature, जो भी लिक्विड में जो सॉल्यूशन बना है एट एनी टेम्परेचर वो किस पे डिपेंड करेगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. किसका प्रोडक्ट रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट का एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जितना भी सोल्यूट एडेड है उसका. ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन हमको रहेगा. सो दिस इज नथिंग बट राउल्ट्स लॉ का है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपाउंड, यानी पूरा जो वेपर प्रेशर है, लोअरिंग है ऑफ दैट सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन इसलिए लिया है बच्चों बिकॉज इट इज अ सोल्यूट एडेड. अब सोल्यूट अकेला तो ऐड नहीं है, जब सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता है तो सोल्यूशन बनता है. ठीक है, लेकिन हम मोल फ्रैक्शन क्यों ले रहे, मोल फ्रैक्शन इसीलिए ले रहे, मोल फ्रैक्शन इसीलिए ले रहे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स रहता है, दैट इज ए एंड बी, दैट इज सपोज इफ वी टेक अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ए एंड बी, then it gives you is equal to the total number of the component of that solution. तो वो मोल पे डिपेंड करता है, अगर A सोल्यूट है तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है, B सॉल्वेंट है तो वो सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा. इन दिस वे दैट लॉ स्टेट्स दैट कंसिडर द माइनर. अभी यहाँ पे तो अभी जो मैंने बोला ही था कि टू वोल्टाइल लिक्विड्स लिए A एंड B, लेट Na एंड Nb आर द, यहाँ पे कट गया है Nb, ठीक है, Na and Nb are the number of moles of two liquids. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अभी मोल फ्रैक्शन क्या है, XA is equal to number of moles of A divided by that of the mixture of that solution. of मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो it will be XB, that is number of moles of that B is divided by number of that of the solution. ठीक है, so in this way ये हमारे दो liquids moles of the two volatile liquids लिए हैं. Now consider n moles of pure solvent. अभी हमने क्या किया है, सपोज हमने पानी लिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सपोज n number of moles of pure solvent with vapor pressure P0. प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर P0 लिया है, जो कि P0 उसको हमने डिनोट किया है क्योंकि हर चीज का वेपर प्रेशर कंडेंसेशन होगा तो हम उसको एक लेवल पे वेपर प्रेशर एग्जर्ट तो होता ही है ना, क्योंकि जब भी कोई चीज हम सॉल्यूशन ले रहे हैं या कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, तो उसका प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस स्टेट इज इन इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ द सॉलिड और लिक्विड. सो in this way we have taken N as the moles of pure solvent and P0 as the vapor pressure of the क्या बोलते हैं उसको, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, नाउ व्हेन n मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल, अभी n मोल्स हमने लिया, हमको मालूम नहीं है कितने मोल्स उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर एडेड, उसमें जो सॉल्वेंट में कितना डाला है सॉल्यूट मालूम नहीं, तो हमने किया n मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू इट. So vapor pressure of the solution becomes Ps. प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है बच्चों, P0 है, और इसका वेपर प्रेशर क्या है Ps. और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है,
कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस स्टेट ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू दी और इज इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड और लिक्विड फेज। जितना डाला है, अगर नहीं है तो P0 है वेपर प्रेशर, अगर है तो सॉल्यूशन PS लिया है। सो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमने बोला था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी volatile that is solution is equal to of that at any temperature is equal to the product of vapor pressure of the pure component and the mole fraction of that of the component in the solution। ये वाला हमने देखा था। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अगर हमने देखा तो PS is what partial pressure of the solution, vapor pressure of the solution, and N is nothing but the pure solvent का है। हमने अभी तक उसको सॉल्यूट डाला नहीं है और N प्लस N यानी अभी N नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉल्यूशन, तो हमने इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। P0 इज ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब इसको हमको क्या करना है, लाइक यू हैव सब्सट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स फ्रॉम, तो हमने P0 को यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो PS बाय P0 इज इक्वल टू N बाय N। अब यहाँ पे अगर ये रिलेशन देखें तो 1 माइनस, ये तो मैथमेटिकल टर्म्स है, टू जस्ट गेट एन इक्वेशन हमने उसको 1 माइनस से सब्सट्रैक्ट किया और सब्सट्रैक्ट करने के बाद व्हाट वी गेट दैट इज P0 माइनस P। अब यहाँ रिलेशन देखो, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच विल बी लेस बिकॉज सॉल्वेंट का ज़्यादा ही होगा, सोल्यूट का कम होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर जैसे हम लोग सोल्यूट ऐड करते जाएंगे हमारा वेपर प्रेशर लोअर होते जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं वेपर प्रेशर का कंडीशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ एलिवेशन, हम लोग जब हमको क्या देखना है कि पानी में कोई सब्सटेंस डाला तो हमने अगर उसको सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही एक्सपेरिमेंट किया या तो हमने उसको बॉईल किया या तो हमने उसको फ्रीज किया या तो हमने उसको ऑस्मोसिस किया, तो हमें क्या फ़र्क दिखता है ये हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब हम या नंबर ऑफ सोल्यूट हम लोग डालेंगे तो हमें क्या चेंजेस। तो हम अभी लोअरिंग में देख रहे हैं वेपर प्रेशर लोअर, यानी लोअर क्यों बोल रहे हैं, जितना सोल्यूट आप डालोगे हमारा वेपर प्रेशर का जो है लेवल वो कमी होते जाएगी वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाएगी, अगर सोलवेंट है, सॉल्यूशन लिया और 1 चम्मच सोल्यूट उसमें डाला, 2 चम्मच शक्कर डाला, ऐसे 3 ग्लास अगर हम लेते हैं तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो जल्दी हो जाएगा, तो वो हायर है एज कम्पेयर टू द 2 ग्राम शक्कर डालने वाले ग्लास से कंपैरिजन अगर हमने किया, तो यही वहाँ पे दिया हुआ है। और इसीलिए यहाँ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखते हो तो माइनस PS कंडीशन का जो मैथमेटिकल टर्म है वो आता है। और अभी आपको मालूम ही है कि N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाय मैथमेटिकल दिस इज गेटिंग कर्ड एंड हमको ये वाला इक्वेशन मिलता है बच्चों, दैट इज P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल N क्या है बच्चों, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट and N plus N is nothing but the number of moles, that is mole fraction of that solution। So left hand side क्या देखते हैं कि the relative lowering of vapor pressure while right hand side is the mole fraction of the solute। From this equation Raoult's law of lowering vapor pressure state that the relative of lowering of vapor pressure of solution containing non-solute is equal to that is the mole fraction of the सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। ठीक है, सो ये हुआ हमारा क्या बोलते हैं उसको, रॉल्स लॉ। एंड अब इस फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम इसको क्या कर सकते हैं, N प्लस N इज इक्वल टू, हमने ये जो इक्वेशन है इसको हमने क्या किया कि ज़्यादा सॉल्वेंट है और ये कम मात्रा में इज इक्वल टू सोल्यूट को, तो हमने इसको N करके डिनोट किया। एंड इफ द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, आप लोगों को मालूम है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास, तो P0 माइनस P में अगर हमने देखे तो ये जो हमारा ये जो है
small w by m and w by m. So P0 minus Ps, that is lowering of vapor pressure of that, is equal to the mole fraction of that solute in the solution. So ये वाला हम देखते हैं and in this way हमने colligative properties में पहले ही पढ़ा था कि it relate to the molar masses of that determination. Lowering of vapor pressure is directly proportional to the molecular weight. So in this way we get the relation with the weight of substance. ठीक है, अब स्मॉल जो है वो वेट ऑफ द सोल्यूट है, मास ऑफ द सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट का है. ठीक है, नेक्स्ट इज वन एक्सपेरिमेंट अगेन, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. फॉर एग्जांपल इसको बोलेंगे ओसवाल्ड वॉकर्स डायनेमिक मेथड और ट्रांसपिरेशन मेथड. सो बच्चों अभी अगर आप देखेंगे ये जो है ये बल्ब है, अलग अलग बल्ब बनाए गए हैं. इसमें हमने क्या किया है, पहले सॉल्यूशन बना के रखा है. यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. जब हम इसमें प्योर एयर ड्राई इज पास्ड थ्रू द सेट ऑफ वेटेड बल्ब्स, then the pure solvent and then the anhydrous chloride. अब ये जो है हमने ड्राई एयर इसमें से अलग चेम्बर से पास होती है, पहले सॉल्यूशन से पास होती है, फिर सॉल्वेंट से होती है और फिर जाके अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से होती है. तो फिर क्या होता है, द व्हेन एयर पासेस थ्रू द सॉल्यूशन इट गेट सैचुरेटेड विथ वेपर्स. ठीक है, अब जब ये एयर इस सॉल्यूशन में पास होती है तो वो गेट सैचुरेटेड and carried forward and weight of the solution bulb decreases. Weight of the solution bulb decreases. तो loss of weight of the solution यानी जो हमारा weight है वो decrease हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जाके air trap कर देती है. तो फिर W1 is directly proportional to vapor pressure of that solution. ठीक है, अब सैचुरेटेड वेपर पासेस थ्रू प्योर सॉल्वेंट. अब ये जो पूरा सोल्यूशन वेपर है वो जाके सॉल्वेंट में पास हो रही है एंड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन. सो लॉस ऑफ वेट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन. ये तो ऑब्वियसली है. तो फिर लॉस ऑफ वेट ऑफ दैट सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो और फिर से वेट लॉस हो जा रहा है सॉल्वेंट का. यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट लॉस हुआ, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट लॉस हुआ क्योंकि वेपर प्रेशर हमारा सॉल्यूशन का कम है और वो जाके पूरा जाके सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, तो और उसको लोअरिंग हो गया है. हालांकि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट हाई रहता है, लेकिन जब एयर पास होती है वो सैचुरेट होती है किसमें, वो सैचुरेट होती है अपने सॉल्यूशन में, और वो जाके पूरा ट्रैपिंग सैचुरेशन हमारी किस में जा रही है, सॉल्वेंट में जा रही है. तो हमारा वेट लॉस हो रहा है यहाँ पे. सो हम रिलेटिविटीली ऐसे लिख सकते हैं W2 दैट इज सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज W1 प्लस W2. ठीक है, अब दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. सो इन दिस वे लॉस ऑफ वेट ऑफ द सॉल्वेंट हमने निकाला, तो हमको क्या रिलेशन मिला, that is W2 by W1 is equal to lowering of vapor pressure of pure solvent minus lowering of vapor pressure of the solution divided by the vapor pressure of the solvent. And if water is used as a solvent, the water vapors are absorbed by the calcium chloride. अब फिर से weight loss हो, so increase. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा जाके कहाँ पे वाटर यूज हो गया है, अब ये क्या कर रहा है, इट इज ऑब्जर्व बाय कैल्शियम. ये पूरा मॉइस्चर जाके कैल्शियम में, और कैल्शियम पहले ही कैल्शियम क्लोराइड आप देखोगे तो अगर ड्राई कैल्शियम रहा है तो वो थोड़ा लाइट वेटेड है. जैसे ही ये सब जाके सैचुरेशन सॉल्यूशन सॉल्वेंट ये जाके पूरे वेपर प्रेशर जाके कैल्शियम क्लोराइड पे अटैक करते हैं, तो कैल्शियम ऑब्वियसली क्या होगा, उसका वेट बढ़ेगा. क्या होगा, उसका वेट घटेगा नहीं, वेट बढ़ेगा. आप देखोगे अगर मॉइस्चर कैल्शियम क्लोराइड को लग गया तो उसका ज़रा वेट, क्योंकि उसमें कैपेसिटी काफ़ी होती है कि वो मॉइस्चर बहुत जल्दी ट्रैप करता है. सो ये जो है इंक्रीज इन वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. सो बस हमको ये क्या करना है कि W2 डिवाइड बाय W1 बाय W1 W2 यानी तीनों बल्ब्स का जो है W1 एंड W2 इज इक्वल टू W3. सो इसको हम लोग ऐसा रिलेशन. So in this way we can
टेक आउट द रिलेटिव वेपर प्रेशर। अब एक एग्जांपल अगर हमने देखे तो 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस वर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द एसीटोन एज 20। अभी सॉल्वेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेंट है एसीटोन, दिस इज एसीटोन। हाँ, और वेट ऑफ द सॉल्यूट क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज 1.2 ग्राम्स। अब क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फाउंड टू कंटेन 182.5 टोर। अब वेपर प्रेशर का जो ये है वो टोर में गिना जाता है, तो क्या है 185 टोर जो है वो किसका है, सॉल्यूशन का है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस पता करना है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर एसीटोन इज 185, ठीक है, P0 हमारा 185 है बच्चों, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 182 है टॉर, मॉलिक्यूलर वेट हमको एसीटोन का दिया गया है। सो हम लोग कैसे एग्जाम्पल फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज P0 माइनस PS इज डिवाइड बाय P0। ये भी देखे है, ये भी देखे है, ठीक है, ये देखे हैं, हमको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द छोटा m निकालना है हमको, क्या निकालना है, छोटा m निकालना है, छोटा वेट देखे हैं दैट इज 1। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखेंगे तो कितना मिला हमको 51.5 ग्राम्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमको ये जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस हमको मिलता है। So thank you so much students for listening and watch the videos as it is very important for you. So today we have seen about the colligative properties, but we have not directly started with the colligative properties. We have started with solution, solvent and solute, then about the components, colloidal, coarse, homogeneous, true solution क्या होता है वो देखा, फिर lowering of vapor pressure क्या है, vapor pressure की definition क्या है, ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, जब भी लिक्विड वेपराइज होता है बिकॉज ऑफ हीट उसको हम क्या करते हैं, इवेपरेशन बोलते हैं। लेकिन जब वो अगर उसमें ढक्कन रख दिए तो क्या होता है, जो पानी से भाप निकलती है अगर लीड रखा तो कंडेंस हो जाते हैं। तो उसका ही हमको प्रेशर देखना है और उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर एक्सर्ट बाय गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद दैट, तो वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर कैसे लोअर होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो वही देखा है हमने। तो हमने वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट को डिनोट किया था P0 और सॉल्यूशन को किया था PS, ठीक है। इस प्रकार हमको जो रॉल्स लॉ बोल रहा है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू द partial pressure of the that solvent and the mole fraction of that solute at any temperature, यानी ये इक्विलिब्रियम बराबर है ना। जो भी हम लोग सॉल्वेंट सोल्यूट लेंगे उसी के उसके ही कॉम्बिनेशन में हमको हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिलेगा, और सॉल्वेंट का तो होगा ही नहीं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कंपेयर टू जो सॉल्यूशन है वो हाई रहेगा और जो सॉल्यूशन वाला रहेगा वो low रहेगा। So in the next chapter or in the next video we are going to study about the osmotic pressure. Thank you student, thank you so much.